Welcome to today's class, students. Today we are going to learn few common functional groups in organic chemistry. Organic chemistry में थोड़े functional group के बारे में पढ़ेंगे. So the first common functional group is halide. Halide मतलब halogen. X मतलब halogen होता है जो periodic table में 17 group में रहता है. In periodic table the 17 group 17 contains halogen like fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. They are all halogen. Group 17 elements are called as halogen. Generally these halogens will be represented by capital X. So अगर कार्बन आटम के साथ ये halogen रहता है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे हैलाइड या हैलो आल्केन. ओके, सो द फर्स्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हैलाइड in the sense halogen with carbon atom that is represented by X. So R in the sense, as we already discussed in the previous video, R in the sense alkyl group. So with this alkyl group one bond is associated with the halogen X. The X may be chlorine, bromine or iodine. Fluorine generally हम नहीं लेते because it is very highly reactive. And halogen containing organic group is called as halo alkanes. Alkanes means saturated hydrocarbon that will be having one hydrogen atom will be substituted with halogen. alkanes का एक हाइड्रोजन आटम हैलोजन से सब्सटीट्यूट होगा तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे क्लास को हम बोलेंगे हैलो alkanes. We have example. This R is here I said formula of halo alkane is Rx. So here R is alkyl group. Here we have taken one alkyl group CH3 that is methyl. With that halogen is chlorine. तो इसका नाम होगा methyl chloride या क्लोरोमीथेन करके भी बोल सकते हैं. क्लोरोमीथेन because one carbon atom with single bond, so chloromethane. Then this is C2H5 is another R group, alkyl group. That name is ethyl with chlorine or maybe bromine or maybe iodine. So we have taken here chlorine. So it is C2H5 is ethyl, Cl is chloride. Ethyl chloride or chloroethane. Also chloro means Cl. It means two carbon atoms. Ane means single bond. So chloroethane also you can consider. The next common functional group in organic chemistry is alcohol. One of the important class where the presence of OH group with the carbon atom makes it alcohol. OH is hydroxyl group. If this hydroxy group if you find with alkyl group or carbon chain, then that will be considered as alcohol. And the name of alcohol always ends with the suffix of alcohol will be ol, ol. The first member of alcohol is methyl alcohol. आप यहाँ देख सकते हैं R ग्रुप है यहाँ पे methyl ग्रुप CH3 और वो बॉन्ड एक और बॉन्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बना methyl alcohol और you can also call it as methanol. सी ये कार्बन आटम के आल्केन को हम बोलेंगे मीथेन. वन कार्बन आल्केन इज मीथेन CH4 है उसका फार्मूला. और ये कार्बन आटम का अल्कोहल का नाम है मेथनॉल. अभी हमने क्या किया है मेथनॉल में मीथेन के ई को निकाल के हमने OL जोड़ा है क्योंकि इसमें फार्मूला है CH3OH. OH इज ए अल्कोहलिक ग्रुप. तो अल्कोहलिक ग्रुप रहने की वजह से मीथेन का ई निकाल के हमने ऑल जोड़ा है तो आप उसे मेथनॉल भी बोल सकते हैं या तो मीथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं. तो सेकेंड मेंबर इज इथाइल अल्कोहल. C2H5 इज इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल भी बोल सकते हैं. द नेक्स्ट मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्डिहाइड. अब यहाँ आल्डिहाइड में क्या है एक ग्रुप कॉमन है और वो ग्रुप है C डबल बॉन्ड वो इसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप. C डबल बॉन्ड का मतलब आता है कार्बोनिल ग्रुप. अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक बॉन्ड की तरफ हाइड्रोजन है तो ये बना आल्डिहाइड. अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ आल्काइल ग्रुप हैं कार्बन चेन है तो वो बना कीटोन. अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक बॉन्ड को हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ है तो वो बना कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर 3 कैटेगरी आते हैं. एक आल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन इज आल्डिहाइड. तो ये आल्डिहाइड में आप हम देख सकते हैं द मॉलिक्यूलर जनरल रिप्रेजेंटेशन इज CH4.
अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ, जैसा मैंने कहा सी डबल बॉन्ड वो एक कार्बोनिल ग्रुप है और उसके साथ एक हाइड्रोजन होगा। अगर इसे कंडेंस करेंगे तो सी एच ओ, जैसा यहाँ पे लिखा है। अगर आल्डिहाइड ग्रुप रहा कार्बन के साथ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो उसका नाम एंड होगा एल आल से। जैसे अल्कोहल का ओएल होगा वैसे आल्डिहाइड का एल होगा, सफिक्स विल बी एल। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ पहला एक कार्बन आटम का आल्डिहाइड होगा फॉर्माल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम है, या मेथनॉल। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, तो ई निकाल के आप एल डालेंगे तो बना मेथनॉल या फॉर्माल्डिहाइड, कॉमन नेम बोल सकते हैं। तो सी डबल बॉन्ड वो एच, ये आल्डिहाइड ग्रुप है। सो और एक बॉन्ड बचा वो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसे कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एच सी एच ओ, मेथनॉल या फॉर्माल्डिहाइड। सेकेंड मेंबर है CH3 सी डबल बॉन्ड वो H, ये तो कॉमन ग्रुप रहेगा आल्डिहाइड में। इसके बगल वाले ग्रुप में ये एक और एक कार्बन चेन लगा दीजिए, ये कार्बन का मीथाइल ग्रुप, तो बना 2 कार्बन का आल्डिहाइड एथनॉल। एथ मतलब 2 कार्बन आटम, एल मतलब आल्डिहाइड एथनॉल। तो कंडेंस फार्मूला होगा CH3 CHO। देन द नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप इज कीटो ग्रुप, सी डबल बॉन्ड वो, और दोनों तरफ हम कार्बन चेन देखेंगे। अल्काइल ग्रुप यू कैन फाइंड अक्रॉस द कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड वो, राइट साइड आल्सो 1 कार्बन चेन और अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड आल्सो 1 कार्बन चेन और अल्काइल ग्रुप, उसे हम कहेंगे कीटोन। और कीटोन जहां पर भी होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सफिक्स होगा, नाम एंड होगा ओन, ONE, ओन से। अभी देखिए कीटोन में एक कार्बन का कीटोन और 2 कार्बन का कीटोन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के अतराफ, कार्बोनिल ग्रुप के सराउंडिंग में 2 कार्बन चेन तो रहना ही चाहिए। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन स्टार्ट्स विथ 3 कार्बन आटम, सो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। राइट साइड 1 मिथाइल ग्रुप, लेफ्ट साइड 1 मिथाइल ग्रुप, सो CH3 सी डबल बॉन्ड वो CH3, 3 कार्बन आटम्स आर देयर। द रूट वर्ड फॉर 3 कार्बन आटम इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड इज देयर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये बॉन्ड छोड़ दीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो प्रोपेन का ई निकाल के हम ओन ऐड करेंगे, तब नाम बना प्रोपनोन। प्रोपनोन, प्रोप मतलब 3 कार्बन आटम्स, येन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओन मतलब ये कीटो ग्रुप प्रोपेनोन। और प्रोपेनोन का कॉमन नेम है असीटोन, असीटोन इज द कॉमन नेम ऑफ propane. So the next functional group in organic chemistry commonly used functional group is carboxyl group, COOH। COOH को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा, सी डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल ग्रुप, मगर एक बॉन्ड OH के साथ जुड़ा होगा, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। इस क्लास को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या तो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। वेरेवर यू फाइंड दिस COOH ग्रुप देन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम सफिक्स शुड बी ओइक एसिड, उसका नाम एंड होगा ओइक एसिड से। अभी देखिए पहला मेंबर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वो OH हो गया, एक बॉन्ड बचा हुआ है उसे हाइड्रोजन के साथ ऐड करेंगे। अगर इसे कंडेंस फॉर्म में लिखना हो तो HCOOH, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक कार्बन होगा तो रूट वर्ड होगा मेथ, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन तो और एक कार्बन तो नहीं है यहाँ पे, तो एन बना, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सफिक्स होगा ओइक एसिड। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेथनोइक एसिड, मीथेन का ई निकालो और ओइक एसिड ऐड करो तो बना मेथनोइक एसिड, इसे कॉमनली फार्मिक एसिड भी कहते हैं। सेकेंड मेंबर में ये तो कॉमन रहेगा, COOH ग्रुप कॉमन रहेगा, इसका और एक बॉन्ड को हम मीथाइल ग्रुप के साथ और एक कार्बन चेन के साथ ऐड करेंगे तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसे कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 कार्बन आटम है तो रूट वर्ड है एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो एन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड, तो नाम बना एथेनोइक एसिड, या कॉमन नाम है इसका असिटिक एसिड जो विनेगर में रहता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेंबर प्रोपोनोइक एसिड और एक मेंबर ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे कंटिन्यू होगा। अनदर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ईथर्स। ईथर में आप ये देखेंगे बॉन्ड O बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये दोनों बॉन्ड एक एक कार्बन चेन के या एक एक अल्काइल
ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। हियर यू कैन सी bond O bond, right side also one alkyl group and left side also one alkyl group, so that is ether. And the naming will be given by oxy, इसे हम oxy करके नाम देंगे अगर when you if you want to write the UPSC name. तो see here one of the first member is bond O bond is तो ether. Now both the sides you can find methyl group, alkyl group CH3 है, तो दो मीथाइल ग्रुप हैं, तो हम क्या लिखेंगे डाई मीथाइल, ये एक मीथाइल ग्रुप है, ये एक मीथाइल ग्रुप है CH3, सो डाई मीथाइल और ये बना ईथर, डाई मीथाइल ईथर। या अगर UPSC नाम लिखेंगे तो ये पहले लीजिए, इसे आप लिखिए मेथॉक्सी, मीथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन है, तो मेथॉक्सी, ये बना मेथॉक्सी और ये बना मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, ये IUPAC नाम है, या आप उसको डाईमीथाइल ईथर भी कह सकते हैं। सेकेंड मेंबर में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, ये ईथर ग्रुप है, ये ईथर ग्रुप के एक तरफ तो मीथाइल ग्रुप है, एक तरफ ईथाइल ग्रुप है, ये ईथर बॉन्ड है, एक साइड में आपको CH3 मीथाइल ग्रुप मिलेगा और एक साइड में आपको C2H5 ईथाइल ग्रुप मिलेगा। अभी अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, बाद में यम बाद में आएगा, तो हम नाम लिखेंगे इथाइल मीथाइल ईथर, या आप लिखेंगे मेथॉक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और ये दो कार्बन आटम का अल्केन ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन. So this is also one functional group you can find in organic compounds.